Good morning, everyone. So, today we are going to learn about something very useful in statistics called frequency and frequency distribution table. Have you ever heard these terms? कभी पहले आपने सुना है इस टर्म्स के बारे में फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स? Okay, no problem. Let me explain you. Imagine I ask each of you about your favorite ice cream flavor. मैंने आपसे पूछा, इमेजिन मैंने क्लास में पूछा कि आप सबकी फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा है. तो सम में भी सेइंग चॉकलेट, कोई बोलेगा वैनिला, सम से स्ट्रॉबेरी. सबके अलग अलग फ्लेवर हो गए. यस. सो इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट विच फ्लेवर इज़ द मोस्ट पॉपुलर, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? मुझे सबके अलग अलग फ्लेवर के बारे में मुझे पता करना और काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? क्या कर सकती हूँ मैं? लाइक काउंट हाउ मेनी पीपल लाइक ईच फ्लेवर. येस, एग्जैक्टली. दैट्स काउंटिंग इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. इट टेल अस हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपेंस. So if 6 students like chocolate, the frequency of chocolate is 6. अगर किसी क्लास में कोई 8 जन को स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पसंद है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएगा? 8. सो फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक द नंबर ऑफ टाइम समथिंग इज़ चूजन. It just lists all the answers. It might get messy. So what can I do make it easier to understand? Make a table. Yes. So that's called a frequency distribution table. It organizes the data by listing each flavor and its frequency side by side. Let's do a quick example. Suppose, have you ever taken a survey where you had to choose your favorite color or snack? If 10 people said pizza, we'll say the frequency of pizza is 10. Yes, I have given you ना कि अगर क्लास में 10 बच्चे को अगर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर पसंद है तो उसे हम क्या कहते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉबेरी इज़ 10. ओके, सो इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. So today we will learn how to organize raw data into frequency table. So आज हम पढ़ेंगे कैसे इसको डालना. So frequency helps us understand data better, and the frequency distribution table makes it easy to see and compare. Okay. So now we will going to see details what are the frequency and frequency distribution table. Now here the activity has been given. Roll a die for 20 times. रोल और डाई मतलब जो हम वो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी में, जो लूडो में आता है, वो 20 टाइम्स उसको क्या करना है? रोल और एंड यूज़ प्रिपेटेड. मतलब एग्जाम्पल डेटा हैज़ बिन गिवन. फर्स्ट टाइम किया तो उसे 3 आया, सेकेंड बार किया तो 5 आ रहा है, थर्ड टाइम किया तो 2 आ रहा है. ऐसे 20 बार किया तो उसको अलग अलग नंबर आ रहे. तो डाई में इसमें कितने डॉट्स होते हैं? एक 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 होता है. यस. तो 1 कितने बार आया? उसमें 3 टाइम्स आया. 2 कितने बार आया? 3 टाइम्स आया. 3 कितने बार आया? 4 टाइम्स. 4 कितने बार आया? यू कैन काउंट इट अबव एंड राइट इट. 4 कितने बार आया? 2 बार आया. 5 कितने बार आया? 4 बार आया है. 6 कितने बार आया? 4 बार आया. सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेटा क्विकली एंड क्लियरली. अभी इससे हमें बहुत इजीली समझ में आया कि 2 का डाई 3 बार आया, 4 का डाई 2 टाइम आया. येस. सो इट हेल्प अस टू नो हाउ द फ्रीक्वेंसी टेबल लाइक द वन शोइंग योर फेवरेट डाई. Yes, we can draw a bar graph or bar chart to represent that information visually. Okay, so now next we are going to see is like tally mark. अब हम क्या देखने वाले हैं? Tally marks. So we'll learn a simple and a fun way to count and record data called tally marks. Has anyone heard of tally marks before? Yes, some have known some small lines we make to counting. Yes, exactly. So tally marks are quick marks we make to keep track of numbers as we count. They help us to organize data easily before making frequency tables.
So let me show you how it works. Imagine we are counting how many students like different colors. I will ask each of you your favorite color and will mark it using by 10 marks. Okay. So suppose 7 students say blue, 4 say red and 6 says green. ओके किसी ने बोला 7 स्टूडेंट ने बोला मुझे ब्लू कलर पसंद है, 4 जन ने बोला कि मुझे रेड और 6 जन ने बोला ग्रीन. सो सी द ग्रुप ऑफ 5 टेली मार्क्स. यस वी मेक 4 straight line and the fifth one diagonally across them. This make it easy to continue in group of 5. सी हम जब फर्स्ट 4 टेली मार्क्स होते हैं वो वर्टिकली हम लाइन करते हैं. यस वर्टिकली हम लोग उसको लाइन करते हैं. जब फिफ्थ आता है उसको बंच बनाने के लिए उसको हम डायगोनली क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. यस तो क्या बन जाता है, हमारा एक ग्रुप बन जाता है 5 टेली मार्क्स का. यस सो वी मेक 4 स्ट्रेट लाइन एंड द फिफ्थ वन इज डायगोनली अक्रॉस दैम. दिस मेक इट ईजी टू काउंट इन ग्रुप ऑफ 5. तो ये हमें ग्रुप काउंट करने में ईजी हो जाता है. ओके now you can see the tabular form of representation is called frequency distribution. For counting we use tally marks, that is 4 vertical line and the fifth goes is diagonal crossing diagonally. The frequency distribution table of the above data may be represented as given below. like number of children कितने फर्स्ट में एक 5 का ग्रुप बना और एक 1 है तो कितना हो गया 6. नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेकेंड में दोनों भी 5 का ग्रुप है तो हाउ मच इट बिकम्स 10. थर्ड ग्रुप में सिर्फ 4 स्ट्रेट लाइन तो कितने हो गए 4. तो द फ्रिक्वेंसी कितना होता है, फ्रिक्वेंसी मीन्स उसको सबको प्लस करना, लाइक 6 + 10 + 4 इट बिकम्स 20. सो इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी एंड द टेली मार्क. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके सो टेली मार्क्स are helpful when you are collecting data and frequency table helps organize it neatly. Now let's practice. I will ask you some question and you will make tally marks on your papers. Like first we'll see tally counting from 1 to 10. Okay 1 2 3 4 में 4 straight line, फिफ्थ आया तो उसको 5 का बंच बन गया. फिर 6 में आता है तो 5 का एक ग्रुप और एक 1. 7 का भी सेम लाइक दैट. ओके यू हैव टू मेक इट लाइक. Now see, I will ask you some question over here and you have to do it on your. 20 students gave the choice of favorite soft drink flavor as follows. यहाँ पे 20 students ने अपने favorite soft drink की choice बताई है. Okay, now you have to represent the given information using tally marks. यहाँ पे फ्लेवर कौन से यहाँ पे दिए है, ऑरेंज दिया है, कोला दिया है, लेमन दिया है, मैंगो. दिस आर द 4 फ्लेवर्स. ये सब 20 स्टूडेंट्स ने अलग अलग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑरेंज. ऑरेंज के कितने फ्लेवर है काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. सो द ऑरेंज फ्लेवर इज 6. यू कैन सी इट. सो नंबर ऑफ कोला फ्लेवर. कोला कितने काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. सो द कोला, द नंबर ऑफ कोला फ्लेवर इज ऑल्सो 8. नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर. लेमन फ्लेवर कितने काउंट करो. 1 2 3. सो द नंबर्स ऑफ लेमन फ्लेवर इज 3. नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर काउंटेड 1 2 3 3. सो द नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर इज 3. सो यू हैव टू डू इट. ये हमें डेटा मिला कि ऑरेंज के कितने हैं, कोला के कितने हैं, लेमन के कितने और मैंगो के. अभी फर्स्ट में ऑरेंज का फ्लेवर आएगा तो ऑरेंज के टेली मार्क्स कैसे करोगे. पहले फर्स्ट 4 लाइन करोगे, एक 1 डायगोनली क्रॉस करोगे और 5 का एक ग्रुप बन गया और एक 1 सिंगल लाइन. यस यू कैन सी इट. ऑरेंज का टेली मार्क्स 4 लाइन करना है, फिर एक डायगोनल क्रॉस और फिर 1. सेम वे कोला का कितना है 8 है. सो 5 का एक ग्रुप बनेगा और एक 3 सिंगल लाइन. लेमन के 3 है तो ओनली 3 सिंगल लाइन एंड मैंगो 3 है तो उसका भी 3 सिंगल लाइन ही बनेगी. नाउ हियर 40 चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 3 वोटेड फॉर द मॉनिटर ऑफ क्लास. यहाँ पे 40 चिल्ड्रन, थर्ड स्टैंडर्ड के 40 चिल्ड्रन ने वोट किया है मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बनने के लिए.
Like on counting the votes, the following results were obtained. Put tally marks on each vote is the given below. यहाँ पे कितने जन खड़े हुए क्लास मॉनिटर के बनने के लिए? 5 people आर एमी, एमिलिया, डेविड, गैरी एंड सैम. यहाँ पे 40 चिल्ड्रन ने वोट किया है उनको. किसी 10 बच्चों ने एमी को किया रहेगा, किसी 3 ने डेविड को रहेगा. तो उसे हमें निकालना है किसने किसको वोट दी है. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद दिस. सो नाउ एमी को मिले हैं, कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो वहाँ पे टैली मार्क्स कैसे करोगे आप? पहले नंबर ऑफ वोट्स लिख दो 8 और टैली मार्क्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट 4 लाइन्स हो गए, क्रॉस करो और बाकी 3. एमिलिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे 10 है तो कितने हो जाएंगे? 2 ग्रुप बनेंगे 5 5 के. सो नंबर ऑफ वॉट एमिलिया गॉट 10. डेविड के कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7. 7 वोट्स मिले डेविड को, तो 5 एक ग्रुप बनेगा और 2 सिंगल है. गैरी को है 1 2 3 4 5 6 वोट मिले, तो एक 5 का ग्रुप बनेगा और एक सिंगल है. सैम 1 2 3 4 5 6 7 8. सैम को भी 8 वोट्स मिले, तो सेम 5 का ग्रुप बनेगा और 3 सिंगल. आई हैव गिवन यू यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स है, यू हैव टू सॉल्व इट. लाइक फर्स्ट 4 लाइन दिया तो कितने हो जाएगा? नंबर ऑफ 4. सेकेंड वन बिकम 5 6 7 8. येस, एक बंच बना मतलब 5 का ग्रुप हो गया. येस, सेकेंड क्वेश्चन में कितना हो गया? 5 6, तो सेकेंड आंसर इज 6. थर्ड में आ जाएगा 8. येस, फोर्थ 10 13. येस, फिफ्थ में 7. येस, सिक्स्थ वन में देखो 3 ग्रुप है 5 के, तो 15 वो हो गए और 3 मीन्स 18. येस, 9. येस, सेवन्थ वन इज़ 9. 8 1 11. येस, 9 एक ही ग्रुप है 5, तो 5. 10th इज 5 10 15, 3 ग्रुप ऑफ 5 है ना, तो 15 हो जाएंगे. ओके. The tally chart below shows different colors of cars that pass the school gate in 5 minutes. यहाँ पे टैली चार्ट दिखाया है डिफरेंट कलर्स के कार से जो वो स्कूल गेट पे 5 मिनट्स में पहुँचने वाले. सो हाउ मैनी ब्लू कार्स डिड पास. यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पूछा है कि ब्लू कार्स कितने हैं. सो यह द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, यू हैव टू काउंट इट द ब्लू कार्स. ओके. सो फर्स्ट इट मेक, वहाँ पे बंच करना है, मेक अ बंच ऑफ 5. येस, एक बंच हो गया 5 का और दूसरा भी बंच 5 का है, और another one is to stand in line. So 5 plus 5 that becomes 10, or 10 plus 2 becomes 12. So our 12, the C is the correct option. Okay, so you understood how it is become. So C, the 12, that is our correct option. Next, here 40 children of grade 3rd voted for monitor of class. On counting the votes, the following results were. यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स ने वोट किया है क्लास के लिए. यहाँ पे वोट के लिए खड़े कौन है? लाइक एमी, एमिलिया, डेविड, गैरी एंड सैम. सो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको टेबल दिया ही है. लाइक टैली मार्क्स मतलब वहाँ की आपको क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, यहाँ पे टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ वोट्स ऑलरेडी हैज़ बीन गिवन टू यू. सो यू द question may be asked to you like who has got highest votes, who had got the maximum vote. Okay, so Amy has got the vote 8 number of votes, Amelia has got number of vote 10, David has got 8 number of votes, Gary has got 6 number of votes, and Sam has got 8 number of votes. Okay, so here the further question will be asked to you. Like see here the vote, the number of vote and the name has been given. Now here who was elected as monitor.
मॉनिटर कौन बनता है? जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही हमारा मॉनिटर बनना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है? एमिलिया। सो द एमिलिया वॉज elected एज अ मॉनिटर। हाउ मैनी वोट्स डिड द मॉनिटर गेट? जो मॉनिटर बना है क्लास का उसको कितने वोट्स मिले? दे आस्क। सो हाउ मैनी वोट्स दे हैड गॉट? 10. So Amelia has got 10 number of votes. Who got the least number of vote? Least मतलब कम, सबसे कम किसे मिला है वोट? So who has got least number of vote? Gary. Yes. So Gary has got the least number of votes. Who all got the same number of votes? किसको किसको सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं यहाँ पे? लाइक यस 8 थे, वो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे वोट्स। और किसका किसका है वो? एमी है, देन डेविड है एंड सैम। यस यस 3 पीपल को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले ही। सो यहाँ पे देखो समटाइम्स टैली मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ वोट्स भी दिया है, बट समटाइम्स क्वेश्चंस भी पूछते हैं। समटाइम्स आपको खुद को टैली मार्क्स बनाना है, नंबर ऑफ वोट्स उसका टोटल नंबर आपको खुद को लिखना है। सो क्वेश्चन मे बी डिफर टू यू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन you have to answer it. Okay, so see here, the marks scored out of 20 by Ron in a unit test are as follows. यहाँ पे रॉन को सब्जेक्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस। सो इंग्लिश में इसको कितने मिले? फर्स्ट यू टू मेक अ बंच ऑफ 5। तो इंग्लिश में 5 + 5 + 5 15, 15 + 3 हो गया 18। ओके, यहाँ पे स्कोर दिए हैं आपको, क्वेश्चंस पूछे, दैट यू हैव टू आंसर इट। ओके, सी इंग्लिश में इसको 18 मिले, हिंदी 17, मैथमेटिक्स 19, साइंस 20, सोशल स्टडीज़ 14 एंड कंप्यूटर साइंस 15. So these are the marks that Rohan has got in the unit test. So again the question has been asked to you. In which subject did he score maximum marks? Maximum, minimum, ये 3 वर्ड्स याद रखना है। मैक्सिमम, लीस्ट, मिनिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मैक्सिमम मार्क्स? कौन से सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? साइंस में। साइंस में उसको 20 मार्क्स मिले, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको साइंस में मिले हैं। ओके, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर मिनिमम मार्क्स? मिनिमम मतलब ठीक है, ऊपर भी नहीं, ना ज़्यादा भी नहीं, ना कम भी नहीं, बीच के मार्क्स। तो कौन से वाले हैं बीच के मार्क्स? यहाँ पे लाइक 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, तो बीच के मार्क्स है 70। सो इन हिंदी ही स्कोर मिनिमम मार्क्स। इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर लेस देन 50 मार्क्स? क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने सब्जेक्ट में उसे 50 मार्क्स से कम मिले हैं? कौन से सब्जेक्ट में? इन विच सब्जेक्ट डिड ही गॉट 15 मार्क्स लेस देन 15 मार्क्स? कंप्यूटर साइंस और सोशल स्टडीज़, इसमें 15 और एक सोशल स्टडीज़ में 40। देयर आर 2 सब्जेक्ट ही स्कोर लेस देन 50 मार्क्स। ओके, इन हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर फुल मार्क्स? कौन से सब्जेक्ट में उसको फुल मार्क्स मिले? यूनिट टेस्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है, तो उसे साइंस में 20 मार्क्स मिले। तो सो इन साइंस सब्जेक्ट ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। यू अंडरस्टूड हाउ दिस इज वर्क? ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो इट्स द एवरेज स्लीपिंग आवर्स इन अ डे ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एक बिलो पिक्चर टेबल दिया है, एनिमल्स के बारे में दिया है, नंबर ऑफ स्लीपिंग दिया है, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स इन अ डे, दैट यू हैव टू गो इन अ टैली मार्क्स। सम ऑफ देम नंबर दिया है और किसी में टैली मार्क्स देते, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। सो नंबर ऑफ स्लीपिंग्स आवर्स इन अ डे, लाइक कैट ने लिया है 11, सो यू हैव टू मेक टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे करोगे इसको? पहले एक बंच का 5 करोगे और दूसरा एक बंच का 5, तो इट बिकम्स 10, और एक सिंगल लाइन स्टैंडिंग ना, सो इट बिकम्स टैली मार्क्स। ना स्क्विरल का नंबर नहीं दिया है, टैली मार्क्स दिया है, तो स्क्विरल का कितना है काउंट करो, 5, 5, 10 एंड 10 + 3 becomes 13. The number of sleeping hours in a day of squirrel is 13. Yes. अगेन लायन का भी टैली मार्क्स दिया, काउंट इट, ईजी है, बंच ऑफ 5 करोगे 5, 10, 15, सो लायन का नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स है 50.
डॉग का दिया है 12, सो यू हैव टू मेक इट टैली मार्क्स। बंच का 5 करोगी, 2 बार बंच ऑफ ग्रुप ऑफ 5 करोगी और 2 स्टैंडिंग लाइन। यस, सेम वे गोट का 5 ही दिया है तो मेक अ 5। गोट का कितना दिया है? 5 दिया है तो मेक इट 5। सो गोट हैज़ बीन गिवन 5 तो मेक इट 5। हॉर्स का 3 है, सो मेक अ टैली मार्क ऑफ 3 स्टैंडिंग लाइन। इसका कोई बंच नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल नंबर है हमारा 3। सो लेट्स सी। Yes, so we have given the correct answer. Cat का 11 है, squirrel 13, lion 15, dog 12, goat 5 and horse is 3. So we have given the correct answer. Now represent the following data in the form of frequency distribution table. अब ये हमें डेटा दिया है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है हमें कौन सा नंबर दिया है। यहाँ पे पहले 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20 एंड 21। दिस 7 नंबर हैज़ बीन गिवन टू यू। सो पहले 15 हम लिखेंगे, नंबर नंबर्स, टोटल नंबर एंड टैली मार्क। तो पहले कौन सा नंबर आएगा हमारा? 15। सो 15 को हमें काउंट करना है कितने बार दिया है। देन 16 को काउंट करना है कितने बार दिया हमें। सेम वे 17, 18, 19, 20 एंड 21 ये हमें काउंट करके टोटल नंबर्स लिखने हैं और उसके टैली मार्क्स हमें प्रेजेंट करने हैं वहाँ पे। सी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा विल बी शोन बिलो। लाइक नंबर्स हमें लिखने लिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। टैली मार्क्स करने लगे 50 कितने बार आया? 5 टाइम आया। 15 कितने बार आया? 5 टाइम। सो तो मेक अ बंच ऑफ 5। 16 has came 7 times, so make a bunch of 5 and 2 standing line. 17 has came 11 times, so again it will make a bunch of 5 of 2 times. 2 बार 5 के bunch बनेंगे, so it becomes 10 and 10 plus 1 becomes 11. Same way 18 5 टाइम आया है तो वो bunch of 1 बनेगा। 19 6 टाइम आया तो bunch of 5 and 1. 23 times, so single 3 standing line. 21 has also come 3, तो it becomes also 3 standing line. So total हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रेजेंट करता है उसके नंबर से 40. Okay, you understood now? So recapitulation, what we had learned today. What is frequency? Frequency क्या होता है? हमें जो भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एकदम ईजी मेथड है। सो विच लाइन इज़ यूज टू ड्रॉ द 5th टैली मार्क्स? कौन सी लाइन हमें ड्रॉ करना है 5th ड्रॉ के लिए? अक्रॉस डायगोनल क्रॉस करना है। 4th स्ट्रेट लाइन एंड 5th गोज बिकम अक्रॉस डायगोनली। हाउ टू फाइंड द टोटल फ्रिक्वेंसी? टोटल फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करना है हमें? जितने भी हमें टोटल नंबर मिले उसको हमें क्या करना है? प्लस। सो यू विल गेट द फ्रिक्वेंसी. सो दैट वी हैड लर्न टुडे इन आवर क्लास. सो फॉर असाइनमेंट I am going to give you 2 sums that you have to do it. Okay, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनिमल्स दिए है आपके क्लास सर्वे के अकॉर्डिंग। आपको टैली मार्क्स में देखना है कितने टाइम्स एनिमल्स आ रहे हैं एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन द फ्रीक्वेंसी। एंड आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस ऑल्सो लाइक विच एनिमल है दी हाइएस्ट? कौन से एनिमल को हाइएस्ट है, लोवेस्ट है एंड हाउ मैनी टोटल रिस्पॉन्स वेर करेक्ट? कितने टोटल रिस्पॉन्स उसके आ रहे हैं। ओके, सेम वे द अनदर क्वेश्चन लाइक फेवरेट स्नैक लिया है, सबका दिया है, उसमें 4 टाइप्स दिए लाइक चिप्स, पॉपकॉर्न, कुकीज़ एंड फ्रूट। उसमें देखना है कितने फ्रिक्वेंसी आ रहे हो उसके टोटल एंड यू हैव टू डू इट टैली मार्क्स। अगेन हियर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड टू यू विच स्नैक वॉज द मोस्ट पॉपुलर? ज़्यादा पसंद है किसको? लिस्ट में यानी कि कम। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वड इन टोटल? कितने स्टूडेंट्स थे? मतलब कि आप जब फ्रीक्वेंसी टोटल करोगे तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स टोटल दिख जाएंगे। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू फॉर योर होमवर्क. ओके, थैंक यू.